एनरन कॉस्मेटिक लाए हैं आपके लिए 6 नए प्रकार के अरोमा। क्राइसलर, रिच इन फ्रेग्रेंस एंड क्लास इन द नेम। मिस्टीरियो, दिस फ्रेग्रेंस ब्रिंग्स पीपल क्लोज। फॉरेस्ट, द क्लासिक वाइल्ड ग्रीन फ्रेग्रेंस। मिडनाइट, वंस अपॉन अ मिडनाइट डियरी। उरुसा, one of the most loved fragrance. Bond Street, perfect fragrance to make a right impression at first sight. एनरन का इत्र आपको पूरे दिन खुशनुमा रखेगा। एक बार आप भी इसे जरूर इस्तेमाल करें। नमस्कार, मैं शामिन गार्डनर और आप देख रहे हैं समय भारत 24/7। 2022 बजट सत्र के दौरान वित्त मंत्री निर्मला ने पेश किया डिजिटल बजट। लोकसभा में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पेश करते हुए कहा कि भारत की विकास दर 9.27% रहने का अनुमान है। उन्होंने कहा कि यह विकास दर बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में सबसे ज़्यादा है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि 2022-23 के बीच नेशनल हाईवे की लंबाई 25,000 किलोमीटर तक बढ़ाई जाएगी। अगले 3 सालों में 400 नई वंदे भारत ट्रेन तैयार की जाएंगी। केंद्रीय बजट में अमृतकाल के अगले 25 वर्षों का ब्लूप्रिंट है। पीएम गति शक्ति से अर्थव्यवस्था को मजबूती मिली है। 100 साल के लिए ढांचागत सुविधाएं बढ़ाई जाएंगी। Honorable Speaker, sir, I present the budget for the year 2022-23. At the outset, sir, I want to take a moment to express my empathy for those who had to bear adverse health and economic effects of the pandemic. The overall sharp rebound and recovery of the economy is reflective of our country's strong resilience. India's economic growth in the current year is estimated to be 9.2%, highest among all large economies. I recognize we are in the midst of an Omicron wave with high incidence but milder symptoms. Further, the speed and coverage of our vaccination campaign has helped greatly. With an accelerated improvement of health infrastructure in the past 2 years, we are in a strong position to withstand challenges. I am confident that with Sabka Prayas, we will continue our journey with strong growth. Honorable Speaker, we are marking Azadi Ka Amrit Mahotsav and have entered into Amrit Kal, the 25-year-long lead up to India at 100. Honorable Prime Minister in his Independence Day address had set out the vision for India at 100. By achieving certain goals during Amrit Kal, our government aims to attain this vision. They are complementing the macroeconomic level growth focus with a microeconomic level all-inclusive welfare focus, promoting digital economy and fintech, technology-enabled development, energy transition and climate action, and relying on virtuous cycle starting from private investment with public capital investment, helping to crowd in private investment. Since 2014, our government's focus has been on empowerment of citizens, especially the poor and the marginalized. Measures have included programs that have provided housing, electricity, cooking gas, and access to water. We also have programs for ensuring financial inclusion and direct benefit transfers. We are committed to strengthening the abilities of the poor to tap all opportunities. Our government constantly strives to provide the necessary ecosystem for the middle classes, a vast and wide section which is populated across various middle income brackets, to make use of the opportunities they so desire. This budget seeks to lay the foundation and give a blueprint to steer the economy over Amrit Kal of the next 25 years, from India at 75 to India at 100. It continues to build on the vision
drawn in the budget of 21-22. Its fundamental tenets, which included transparency of financial statement and fiscal position, reflect the government's intent, strengths, and challenges. This continues to guide us. The initiatives of the last year's budget have seen significant progress and have been provided with adequate allocations in this budget as well. The strengthening of health infrastructure, speedy implementation of the vaccination program, and the nationwide resilient response to the current wave of the pandemic are evident for all. The productivity-linked incentive in 14 sectors for achieving the vision of Atmanirbhar Bharat has received excellent response, with potential to create 60 lakh new jobs and an additional production of 30 lakh crore during next 5 years. Towards implementation of the new public sector enterprise policy, the strategic transfer of ownership of Air India has been completed. The strategic partner for Neelachal Ispat Nigam Limited has been selected. The public issue of the LIC is expected shortly. Others too are in the process for 2022-23. मुश्किलों में आए बिग बॉस 13 के हिंदुस्तानी भाऊ पुलिस ने किया गिरफ्तार। मुंबई में स्कूली छात्रों ने महाराष्ट्र के शिक्षा मंत्री प्रो वर्षा एकनाथ गायकवाड़ के घर के पास विरोध प्रदर्शन किया। कोरोना महामारी के बीच छात्रों की मांग है कि उनकी 10वीं और 12वीं क्लास की परीक्षाएं ऑनलाइन कराई जाएं। वहीं इस मामले में महाराष्ट्र पुलिस ने बिग बॉस 13 के विकास पाठक को गिरफ्तार कर लिया है। सूत्रों के अनुसार सोमवार को हिंदुस्तानी भाऊ को धारवी पुलिस ने छात्रों के प्रदर्शन में शामिल होने पर गिरफ्तार किया है। गौरतलब है कि 10वीं और 12वीं क्लास के छात्र काफ़ी समय से ऑनलाइन परीक्षा कराने की मांग कर रहे हैं। इस पूरे मामले में सोमवार को डीसीपी प्रणय अशोक ने कहा कि हमने छात्रों को समझाने की काफ़ी कोशिश की है। मेरठ पहुंचे कांग्रेस के स्टार प्रचारक हार्दिक पटेल ने भाजपा पर साधा निशाना, कही ये बात। गुजरात में कांग्रेस के कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष एवं स्टार प्रचारक हार्दिक पटेल ने कहा कि भाजपा सिर्फ धर्म के नाम पर चुनाव लड़ रही है। योगी सरकार ने जनता की जेब खाली कर दी है, लेकिन महंगाई पर बात नहीं कर रही है। महंगाई तब ही कम होगी जब भाजपा चुनाव हारेगी। हार्दिक पटेल ने अपने ट्विटर अकाउंट पर महा महंगाई भाजपा लाई बुलेट लोकार्पण के बारे में ट्वीट किया है। उन्होंने कहा कि इस बुलेट का लोकार्पण मेरठ से किया जा रहा है। कांग्रेस प्रवक्ता गौरव वल्लभ ने प्रेस वार्ता करते हुए भाजपा पर महंगाई को लेकर किया तीखा हमला, साथ ही नारा दिया भाजपा हटाओ महंगाई घटाओ। Only 2 minutes. साथियों, अब नारा बन चुका है भाजपा को हराइए और महंगाई पर विजय पाइए। और मैं एक मध्यम आय वर्गीय व्यक्ति की एक दिनचर्या आपके सामने रखता हूं और किस तरह वो महंगाई से त्रस्त है। जैसे ही वो सुबह उठता है और दूध बाहर से लेके आता है तो पिछले 7 सालों में दूध के दाम 60% बढ़ गए। दूध के बाद जब वो चाय बनाने के लिए गैस सिलेंडर चालू करता है तो 450 का गैस सिलेंडर आज देहरादून में 918 रुपए 50 पैसे पे आ गया। चाय के लिए जब उसमें शक्कर डालता है और चाय पत्ती डालता है तो जो चाय पत्ती 130 से 140 रुपए प्रति किलो मिलती थी वो आज 400 रुपए प्रति किलो पे आ गई। उसके बाद जब वो चाय पी के ऑफिस के लिए जाने से पहले नाश्ते की बात करता है तो आटे के दाम 60% बढ़ गए, दालों के दाम दुगने हो गए, खाने के तेल के दाम 2.5 गुने हो गए। उसके बाद जब वो ऑफिस के लिए बाहर जाता है स्कूटर लेके तो तेल, पेट्रोल और डीजल के दाम जो एक्साइज ड्यूटी 3 रुपए 56 पैसे थी डीजल में 2014 में, वो आज एक्साइज ड्यूटी कम करने के बाद 23 रुपए पे है। पेट्रोल में वो 27 रुपए में है जो 9 रुपए 56 पैसे थी 2014 में। जब वो ऑफिस से वापस घर आते हुए फल फूल सब्जी वापस लेता है तो सब्जियों के दाम, टमाटर हो आलू हो, सबके दाम दुगने हो गए। जब वो वापस घर पहुंचता है, घर पहुंच के अगर वो
कोई टीवी देखना चाहता है तो बिजली के दाम टेढ़े हो गए, रेल भाड़ा 130% से ज्यादा बढ़ गया। ये सारा विवरण हमने इसमें दिया है। हमने इस जो श्वेत पत्र है इसमें किस तरह महंगाई से भारतीय जनता पार्टी ने लोगों को त्रस्त कर रखा है, किस तरह से पीएनजी और सीएनजी के गैस के दामों से लोग त्रस्त है, किस तरह से गैस सिलेंडर के दामों से त्रस्त है। एक टेबल आपके सामने रख रहा हूं, ये टेबल हमने बनाई है और डाटा मैंने जो लिया है इसके लिए, ये देहरादून के भाव है और सोर्स भी दिया है। एक एक चीज के 2014 के भाव और 2022 के जनवरी के भाव आपके सामने रखे इस टेबल में। उसके पश्चात भाजपा ने जी मैं एक मिनट उसके पश्चात जो जीएसटी जो बढ़ाई 1 जनवरी से, वो बातें। तो ये जो बुकलेट है सर, मैं इस बुकलेट का एक ब्रीफ आपके सामने रखा ताकि ये कहाँ पे क्या चीज है वो चीज आपको समझ आए। पंजाब में प्रेस वार्ता कर भूपेश बघेल ने मोदी सरकार पर किया तीखा वार। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने मोदी सरकार को घेरते हुए कहा है कि केंद्र सरकार महंगाई के मुद्दे पर पूरी तरह से फेल साबित हुई है। बघेल सोमवार को पंजाब कांग्रेस मुख्यालय में प्रदेश अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू के साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित कर रहे थे, जिसका संचालन पार्टी प्रवक्ता पवन खेड़ा ने किया है। मुख्यमंत्री बघेल ने आरोप लगाया कि पीएम मोदी का गुजरात मॉडल विफल हो चुका है। इस कड़ी में पेट्रोल डीजल के रेट जहां सेंचुरी लगा चुके हैं, वहीं रसोई गैस सिलेंडर 1000 रुपये तक पहुंच चुका है। इसी तरह दाल और खाने के तेल के रेट 100 से 200 रुपये तक पहुंच गए हैं। चाय पत्ती और नमक जैसी वस्तुओं के रेट भी आम व्यक्ति की जेब से बाहर हो चुके हैं। अब कड़वी हो चुकी है, क्योंकि जो चाय की पत्ती 130-140 रुपए मिलता था, आज वो 500 के पार हो गए हैं। अब नमक भी महंगे हो गए हैं। आदरणीय साथियों, एक तरफ महंगाई बढ़ती जा रही, जैसे जैसे महंगाई बढ़ती जा रही है, भारतीय जनता पार्टी के जो संपत्ति है उसमें इजाफा हो रहा है। जो संपत्ति 780 करोड़ का था, आज 4850 करोड़ के पहुंच गए। लोग गरीब होते जा रहे हैं। मध्यम वर्ग के लोग हैं वो निम्न मध्यम आय वर्ग के हो गए हैं और निम्न मध्यम आय वर्ग के लोग अब गरीबी रेखा के नीचे आ गए हैं। ऐसे समय में लोग रोज हम मीडिया के माध्यम से देखते हैं, सुनते हैं कि उनके जो मित्र हैं उनकी संपत्ति प्रतिदिन 1000 करोड़ की वृद्धि हो रही है और अरबपति से खरबपति होते जा रहे हैं। बिजनौर में सभा करने पर पुलिस ने की बड़ी कार्रवाई, 21 लोगों को किया नामजद। बिजनौर विधानसभा से गठबंधन प्रत्याशी डॉक्टर नीरज चौधरी सोमवार को अपने समर्थकों के साथ मंडावर थाना क्षेत्र के गांव इनामपुरा में जनसभा कर रहे थे। इस जनसभा को लेकर मंडावर थाना पुलिस ने आचार संहिता के उल्लंघन और महामारी के नियम तोड़ने पर केस दर्ज किया है। बताया गया है कि पुलिस ने गठबंधन प्रत्याशी डॉक्टर नीरज चौधरी, रालोद जिला अध्यक्ष अली अदनान समेत 21 लोग नामजद और 150 अज्ञात लोगों को आरोपी बनाया है। बेमौसम बरसात से जिन किसानों की फसल खराब हुई थी, दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल ने दिया मुआवजा, साथ ही शीला दीक्षित को लिया आड़े हाथ। हमारी नई नई पार्टी बनी थी। 2013 में ओले पड़े थे बेमौसम, कई किसानों की फसलें बर्बाद हो गई थी। उस टाइम कोई पत्रकार, उस टाइम शीला जी मुख्यमंत्री थी, कोई पत्रकार उनके पास गया। उन्होंने कहा जी किसान बड़े दुखी हैं, इनके बारे में कुछ करोगे क्या? ओले पड़े हैं, इनको कुछ मुआवजा वगैरह कुछ दोगे क्या? तो उनका जवाब था, किसान, दिल्ली में खेती भी होती है क्या?
15 साल राज करने के बाद अगर कोई मुख्यमंत्री कहे कि दिल्ली में खेती भी होती है क्या, तो किसान का एक तो बेचारे का फसल बर्बाद हो गई, दूसरे इंसल्ट हो गई अगर अपनी मुख्यमंत्री कहेगी कि खेती भी होती है क्या। ये दिखाता है कि दिल्ली के गवर्नेंस से, दिल्ली के पूरे शासन व्यवस्था से किसान किस तरह से गायब था। जब मुख्यमंत्री और मंत्रियों को यही नहीं पता होगा कि दिल्ली में खेती भी होती है तो वो उनके लिए काम क्या करेंगे, है ना। हमारी सरकार बनी, सरकार बनते ही कुछ महीनों के बाद मेरे पास कुछ किसान आए। फरवरी में सरकार बनी थी, अप्रैल का महीना था, मेरे को याद है। अप्रैल के महीने में कुछ किसान आए, उन्होंने कहा जी हमारी बेमौसम बरसात हो गई, बरसात की वजह से हमारी फसल बर्बाद हो गई। मैं उनके साथ ही हो लिया और 8-10 गांव में मैं घूम के आया। मैंने देखा कि फसल काफ़ी बर्बाद हो गई थी और वहीं हम लोगों ने फिर ऐलान किया कि उनके साथ बैठ के वहीं खाट पे हमने थोड़ी बहुत कैलकुलेशन करी। मैंने कहा जी बताओ ज़रा कितना खर्चा आया, कितनी फसल, कितना होना चाहिए। 20,000 रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से हमने तय किया और किसान बड़े खुश हो गए। और हमने उस वक्त ना केवल ऐलान किया बल्कि 2-3 महीने के अंदर सबके खातों में भी पहुंच गया पैसा। आज फिर से ये अक्टूबर के महीने में अभी अपने फिर बेमौसम बारिश हो गई, बारिश की वजह से फसल बर्बाद हो गई। तो अब फिर से हम लोगों ने 20,000 रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से दिया है। इसमें जिन जिन किसानों का, इसमें बहुत ज़्यादा लंबा चौड़ा गुना भाग नहीं किया, नहीं तो अगर ज़्यादा मुश्किल कर दो, कॉम्प्लिकेट कर दो तो नीचे अफसर को फिर वो अफसर कहता है अच्छा इसमें इतना कर दूंगा तो इतने पैसे दे दे, इतना कर दूंगा, तो वो कुछ रखा ही नहीं आपने। हमने सिंपल रखा है भाई, 70% से कम लॉस हुआ तो 70% दे देंगे और 70% से ज़्यादा लॉस हुआ तो 100% दे देंगे। सिंपल सा है, इसमें ज़्यादा लंबी चौड़ी कैलकुलेशन करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो अक्टूबर में लॉस हुआ था और 2-3 महीने लग गए सर्वे कराने थे। सारे सर्वे अब कंप्लीट हो गए हैं, मुझे बताया गया है। मैं सारे अफसरों को और कर्मचारियों को भी बधाई देना चाहता हूं, उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं किसानों की तरफ से कि इतनी जल्दी उन्होंने सर्वे कंप्लीट कर लिया। तो आज से सबके चेक आने चालू हो जाएंगे। आज हम 10 या 11 किसानों को मैं दे रहा हूं चेक। किसानों की बात है, मैं तो चाहता था कि आपके खेतों में आके ये चेक बंटने चाहिए, खेतों में होनी चाहिए थे, गाँव में, ये सभा गांव में होनी चाहिए थी और हजारों की तादाद में किसान होते तो मज़ा ही अलग होता। लेकिन कोरोना का टाइम है, कोरोना की वजह से मीटिंग ज़्यादा करनी ठीक नहीं है, तो ये छोटा सा कार्यक्रम हमने ऑडिटोरियम में किया है। तो आज से किसानों को अपने अपने चेक मिलने चालू हो जाएंगे। मैं ये देख रहा था अभी, इसमें किसी को 3 लाख का चेक है, किसी को 2 लाख का चेक है, किसी को 2.5-3 लाख का चेक है। मतलब रेस्पेक्टेबल अमाउंट है। तो बाकी दूसरे राज्यों में पता चलता है भाई चेक दिए, किसी के 10 रुपए का चेक पहुंचा, किसी के ना ही दो यार, इंसल्ट तो ना करो कम से कम। उत्तर प्रदेश में कोरोना के 6,626 नए केस मिले, 18 की हुई मौत। उत्तर प्रदेश में बीते 24 घंटे में कोरोना से संक्रमित 6,626 नए रोगी मिले। अब हर दिन मरीजों की संख्या घट रही है। बीते रविवार को 8,100 रोगी मिले थे, यानी 18% मरीज कम मिले हैं। वहीं नए मिले मरीजों के मुकाबले 6,000 से ज़्यादा रोगी ठीक भी हुए हैं। अब सक्रिय केस घटकर 54,836 रह गए हैं। बीते 17 जनवरी को 10,000 से ज़्यादा सक्रिय केस थे। अपर मुख्य सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद ने बताया कि 52,000 से ज़्यादा नए मरीज होम आइसोलेशन यानी घर पर ही अपना इलाज करा रहे हैं। उन्होंने यह भी कहा कि अब संक्रमण दर घटकर 3.86% हो गई है। इस तरह रिकवरी रेट में लगातार सुधार हो रहा है। उत्तर भारत के कई हिस्सों में बारिश के आसार, फरवरी महीने में भी जारी रहेगी ठंड। साल 2022 का दूसरा महीना फरवरी भी ठंड भरा रहेगा। मौसम विभाग ने सोमवार को बताया है कि फरवरी में देश के ज़्यादातर हिस्सों में सामान्य से कम तापमान रहने की संभावना है, जबकि पंजाब और हरियाणा में सामान्य से ज़्यादा बारिश हो सकती है।
मौसम विभाग ने कहा फरवरी 2022 में भारत के पूर्वी हिस्से और दक्षिण भारत के इलाकों को छोड़कर देश के ज़्यादातर क्षेत्रों में न्यूनतम तापमान सामान्य से नीचे बना रहेगा। चुनाव से पहले कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने युवाओं से की अपील, बोली अपने मुद्दों को लेकर ही चुनाव में चर्चा करें। सत्ता में आकर किसी के साथ युवाओं के लिए हम बहुत स्पष्ट हमने किया हुआ है, कहा हुआ है कि हम युवाओं को कहना चाहते हैं आपको रोजगार की जरूरत है, आप अपने पैरों पे खड़ा होना चाहते हैं, उसके लिए आपको मदद की जरूरत है। आपकी जिम्मेदारी है कि इस चुनाव में आप उन मुद्दों पर चर्चा कराएं जो आपके मतलब के मुद्दे हैं। आप बेरोजगार रहेंगे, आपका भविष्य नहीं बनेगा। तमाम पॉलिटिकल जो पार्टीज हैं, जो राजनीतिक दल हैं, सिर्फ इधर उधर की बातें करेंगी, आपकी भविष्य की बात नहीं कर रहे हैं, आपके विकास की बात नहीं कर रहे हैं। हम कह रहे हैं कि विकास की बात होनी चाहिए। हमने नौजवानों के लिए एक अलग घोषणा पत्र निकाला है, उसका नाम है भर्ती विधान, क्योंकि हमने सोचा कि हर राजनीतिक दल कहता है कि 20 लाख नौकरियां दे रहे हैं, हम 25 लाख रोजगार दे रहे हैं, लेकिन ये कभी नहीं कहते कि ये रोजगार आएंगे कहाँ से, किस तरह से दिए जाएंगे। तो हमने ये तय किया कि नौजवानों को हम बताना चाहते हैं कि आपको रोजगार हम कहाँ से देंगे, कैसे आएंगे ये रोजगार। 12 लाख रोजगार जो सरकार में खाली पड़े हुए हैं, उसको हम किस तरह से भरेंगे। आप अगर अपना छोटा बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो किस तरह से सरकार आपकी मदद करेगी। आपने देखा होगा एनटीपीसी के जो छात्र हैं कितने त्रस्त हैं, परेशान हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, उन पे लाठियां बरसाई जा रही हैं, लेकिन कोई उनकी बात नहीं सुन रहा है। 2 सालों से मैं यूपी में काम कर रही हूँ, मैंने बार बार देखा है कि जब ये टेस्ट आते हैं, जब ये भर्ती के जो एग्ज़ाम होते हैं, या तो रद्द हो जाते हैं, या तो पेपर लीक हो जाता है, या फिर एग्ज़ाम के बाद कट ऑफ चेंज हो जाता है। और तमाम ऐसे स्टूडेंट्स हैं, ऐसे नौजवान हैं जिनके करियर बर्बाद हो चुके हैं, जो 5-5, 6-6 सालों से इंतज़ार कर रहे हैं इस आशा में कि मैंने एग्ज़ाम दिया, मुझे नौकरी मिलेगी। और बार बार घोटाले करे जा रहे हैं, बार बार उनको त्रस्त किया जा रहा है। जब वो आवाज़ उठाते हैं उनको आप पीटते हैं। तो हमने उनके लिए खास इस भर्ती विधान में हमने लिखा है कि हम इन चीज़ों को दूर कैसे करेंगे, इन समस्याओं को हल करने के लिए हम क्या करना चाहते हैं कि हम एक स्पेशल रिक्रूटमेंट कमीशन बनाना चाहते हैं जो इन समस्याओं को समझे और इनको सुलझाने का काम करे, कि हम निःशुल्क ये एग्ज़ाम निःशुल्क कराएंगे। आप अगर ट्रेन से जा रहे हैं या बस से जा रहे हैं इस एग्ज़ाम को देने के लिए, तो आपको वो भी यात्रा निःशुल्क होगी। और हम एक रोज़गार के लिए हम एक टाइम टेबल जैसा बनाना चाह रहे हैं, एक जॉब कैलेंडर, हर एक भर्ती के लिए अलग, जिसमें लिखा जाएगा कि आपका एग्ज़ाम इस डेट पे होगा, इसका रिज़ल्ट इस डेट पे आएगा, इसके बाद आपको नौकरी इस डेट पे मिलेगी, और 6 महीनों से ज़्यादा नहीं होना चाहिए वो गैप। आज एग्ज़ाम और रिज़ल्ट में 1.5 साल का गैप है। बताइए कैसे हो सकता है, कैसे हो सकता है। और आप सोच रहे हैं कि नौजवान त्रस्त नहीं होगा, दुखी नहीं होगा, और आप उनकी बात नहीं सुन रहे हैं, उनको मार रहे हैं, पीट रहे हैं, जेल में डाल रहे हैं, उनका करियर ख़त्म कर रहे हैं, उन पे ऐसी ऐसी धाराएं लगा रहे हैं कि वो जेल चले जाते हैं, बाद में यूनिवर्सिटी नहीं जा सकते हैं। तो हम कह रहे हैं कि हम समझ रहे हैं कि ये आपकी समस्याएं हैं, इसको सुलझाने के लिए, इनको सुलझाने के लिए हमने एक पूरा विधान बनाया है। इसको पढ़िए, ऑनलाइन भी पढ़िए, और जहाँ से भी आपको ये उपलब्ध हो सकता है आप उसको देख के पढ़िए, क्योंकि हम ठोस बात कर रहे हैं, हम इधर उधर की बातें नहीं कर रहे हैं। हम कह रहे हैं कि चुनाव असली मुद्दों पे लड़ा जाना चाहिए, विकास पे लड़ा जाना चाहिए। आपके मोहल्ले में नल क्यों नहीं है, पानी नहीं है, बिजली क्यों नहीं है, सड़क नहीं है, आपको रोज़गार क्यों नहीं मिल रहा है, आपकी शिक्षा में आपका बजट क्या है, आप 80%, 20% की बातें कर रहे हैं। आप ये क्यों नहीं कह रहे हैं कि कितने प्रतिशत बेरोजगार बैठे हुए हैं उत्तर प्रदेश में। आप ये क्यों नहीं कह रहे हैं कि शिक्षा का जो बजट में आपने जितने प्रतिशत पैसे आपने खर्चे हैं वो पहले से कम हो गए हैं, ये क्यों नहीं कह रहे हैं। आप ये क्यों नहीं कह रहे हैं कि आप कितने प्रतिशत आप खर्चेंगे सेहत के लिए, सेहत की सुविधाएं के लिए। तो हम कह रहे हैं कि इन बातों पर चुनाव लड़ा जाना चाहिए, और हम कह रहे हैं ये इससे सिर्फ राजनीतिक दलों का फ़ायदा होता है, जातिवाद और सांप्रदायिकता
को फैलाने से, सिर्फ राजनीतिक दलों का, पब्लिक का कोई फायदा नहीं है इसमें। ऐसे ही बड़ी खबरों को जानने के लिए बने रहें इस समय भारत 24/7 के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। छोटा ही सही लेकिन खूबसूरत हो आपका आशियाना, तो नई टेक्निक्स और डिजाइन्स का इस्तेमाल करके आप अपने घर को बेहद ही खूबसूरत और आकर्षक बनवा सकते हैं। नए इंटीरियर डिजाइन्स, अट्रैक्टिव कलर कॉम्बिनेशन और एडोरेबल फर्निशिंग स्टाइल से आपके घर का लिविंग रूम, बेडरूम, किचन, बालकनी देगा आपको सपने जैसे घर का लुक। आप नहीं होना चाहते हैं अपने घर से बोर, तो कांटेक्ट कीजिए 9315138474 पर या फिर 9717378629 पर। वेबसाइट है www.citywide.co.in।